Unit 1, Chapter 2, Introduction to MS Office Tools. Now, this in this chapter we will more focus about Excel. But first of all, we get the understanding about what are the office tools, and you can get expertise in this by doing more and more practice. I will provide you some of the Excel examples so that you can make practice for the same. Now, introduction. Office tools are type of a application software. It is one type of application software. It helps the user to perform office related tasks easily and efficiently with less time and efforts. Therefore, these tools help to create, manage, and manipulate large amount of data and documents. Moreover, it helps to create presentations, report, database, etc. also. These tools includes software such as word processor like Microsoft Word, presentation tools like PowerPoint, spreadsheets like Excel, database system, email tools, etc. So these are the different MS Office tools. Now, first of all, we will learn about types of Office tool that can be asked in short question of 5 marks. This software deals with text documents. It helps to create, format, manipulate, save text, files, etc. Beside, the software can either run on the hardware as a desktop application such as Microsoft Word, or on the other hand, it can also be cloud based such as Google Doc. मीन्स दोनों तरह से काम कर सकता है। जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन में एज ए हार्डवेयर अगर आपके अंदर आपके लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर है उसका, तो वो वहाँ पे भी रन कर सकता है, या तो क्लाउड बेस्ड, जैसे आपको कहीं पे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लाउड में ही जो स्टोरेज होगा उसमें ही स्टोर होगा और उस पे भी आप वर्क कर पाओगे। सर्टेन एग्ज़ाम्पल आर एज़ फॉलो, जैसे एमएस वर्ड है, वर्डपेड है एंड गूगल डॉक्स। सो ये एमएस वर्ड है ना, हार्डवेयर बेस्ड है, वर्डपेड इज़ आल्सो हार्डवेयर बेस्ड एंड गूगल डॉक इज़ क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट है। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट यानी वर्ड प्रोसेसर किस काम का आता है, तो जस्ट वेरी सिंपल, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा ही होगा, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे यूज भी किया होगा। और फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर क्या होता है कि वर्ड प्रोसेसर टूल कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। देखो ये इसका फीचर्स होता है, क्रिएटिंग, सेविंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये सबसे पहला इसका बेनिफिट है। Second one, it can format text including features like font size, font color, alignment, word art, etc. Spelling and grammar check भी हो जाता है वहाँ पे. Then adding image, if you want to add image, clip chart, clip part, screenshot, watermark to the text, ये भी हो सकता है. Setting header and footer and margin to the text pages, और ये तो बहुत कम फायदे बताए, और भी बहुत सारा कुछ इसकी मदद से आप कर सकते हो. Now next one, जो नेक्स्ट टूल है वो प्रेजेंटेशन टूल है। तो यहाँ पे पावर पॉइंट आता है और गूगल स्लाइड्स 2 आता है। दिस टूल हेल्प्स द यूजर टू ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड स्लाइड्स। आप सारा का सारा कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको ऐसे वर्ड फॉर्मेट में रखोगे तो देन इट विल बिकम वेरी बोरिंग। So what you are doing, you are converting information into small parts and you are converting it into slides. So slides are basically small parts of particular topic arranged on a different pages. Moreover, a series of these slides represented an idea to the audience is called presentation. पूरा जो सीरीज होगा उसको हम प्रेजेंटेशन बोलेंगे. Beside this tool allows the user to present this presentation using slideshow features. आप slideshow feature जो होता है उसकी मदद से आप उसको प्रेजेंटेशन कर सकते हो. फर्दर मोर द स्लाइड्स कैन कंटेन पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, ग्राफ्स, टेबल एक्सेट्रा, ये सब होता है. ये कोई भी स्लाइड्स में आप उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सारी चीज आप उसमें यूज कर सकते हो. सर्टेन एग्जांपल्स आर एज फॉलोज, जैसे एमएस पावर पॉइंट एंड गूगल स्लाइड्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दो है जो प्रेजेंटेशन टूल्स में ज्यादातर यूज होता है. नाउ स्प्रेडशीट टूल्स, दिस सॉफ्टवेयर contains the data in the form of rows and column. द इंटरactions ऑफ रोज एंड कॉलम इज सेल. तो ये एक एमसीक्यू के पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे रो एंड कॉलम का जो इंटरक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे. एंड स्प्रेडशीट में रोज एंड कॉलम होता है. द स्टोर द डेटा
They store the data and have various formula which in turn helps to analyze, calculate and draw conclusions from data. The business and financial sector use this software more often. सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन इसको यूज करते हैं. They also contains additional feature like अब इसमें ग्राफ, चार्ट, 3D ग्राफ, टेबल एक्सेट्रा और इफेक्टिव रिजल्ट्स आप अपने आप बना सकते हो. Report presentation is thus quite easy considering these results. Certain examples are as follows. यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है MS Excel एंड गूगल शीट्स. ये क्लाउड बेस्ड है और MS Excel क्लाउड बेस्ड नहीं है. Now features of spreadsheet: simple calculation like addition, subtraction, multiplication, finding the average, counting is very easy. More simple formulas are used for these calculations. Graphs and charts are quite easy to make based on the data in cell. अब आराम से ग्राफ एंड चार्ट बना सकते हो जो डेटा सेल में फीड किया है उसके बेसिस पे से. फॉर्मेटिंग द डेटा इज क्वाइट इजी एंड एफिशिएंट. आप डेटा को फॉर्मेट भी बहुत इजी तरीके से और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हो. इट इज इजी टू एंटर डेटा इन सेल. सेल में डेटा बहुत इजी तरीके से एंटर किया जाता है. लॉजिकली कंपैरिजन कैन बी इजीली कैलकुलेटेड. अब लॉजिकली हर एक चीज को कंपेयर भी कर सकते हो. अब देखो इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं विथ फॉर्मूला. आपको क्या करना है, ये सारा डेटा एज इट इज एक्सेल में जाके पेस्ट करना है. कैलकुलेट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटिंग फॉर फॉलोइंग वर्कशीट. अब जैसे मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिखा है. देखो टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या करना है, स्टेप 1 में क्लिक एट सेल E2. E2 में जाके आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप यहाँ पे E2 में जाओगे वहां पे क्लिक करना है. फिर यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन करके ये फॉर्मूला लगाओगे एंड फिर एंटर की लगाओगे तो आपको आ जाएगा. देखो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली ये फॉर्मूला लगा रहे हो P इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाई 100. फिर ये सेल को यहाँ से आपको यहाँ तक सिर्फ यहाँ पे जो आएगा यहाँ से आपको ड्रैग करना है. जस्ट इतना ड्रैग करोगे तो फिर आपका E6 तक पूरा आंसर एक ही क्लिक में सिंपल इंटरेस्ट सभी का कैलकुलेट होके आ जाएगा. अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सेकेंड कॉलम में तो वहां पे आपको क्लिक एट सेल F2 में जाने का. ये फॉर्मूला आपको टाइप करना पड़ेगा, सेम टू सेम फॉर्मूला. और ये फॉर्मूला को फिर आपको ड्रैग करना पड़ेगा नीचे तक. तो फिर आपको ये सारी डेटा ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा. तो ये आपको प्रैक्टिस करोगे तो ही पता चलेगा. वैसे मैं आपको जस्ट फॉर्मूला इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप एक दो बार टाइप करोगे ये फॉर्मूला, अगर कुछ मिस्टेक होता है तो यू कैन राइट डाउन इन अ कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट मैटर ऑल्सो. नाउ कैलकुलेट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन फॉर द फॉलोइंग वर्कशीट. ये एक अलग अनदर क्वेश्चन दिया है आपको अलग तरीके से काउंट करने के लिए. यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, क्लिक एट सेल D2. आपने D2 में कैलकुलेट किया. यहाँ पे क्या था, प्रीवियस में सारे में ईयर्स अलग अलग था. देखो यहाँ पे क्या था, ईयर्स 2 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4. तो अलग अलग ईयर्स था. बट यहाँ पे क्या है, ईयर्स सेम है, खाली अमाउंट और रेट में डिफरेंस है. मीन्स अब आपका जो डॉलर का साइन आपको यूज करना पड़ेगा. मीन्स ईयर सेम है ना, तो आपको चेंज क्या करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे आपको D2 में जाना पड़ेगा, इस कॉलम में जाना पड़ेगा. यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करके B2 करना पड़ेगा. मीन्स B2 इज योर अमाउंट. वो ये B2 क्या है, तुम्हारा अमाउंट है. फिर आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डॉलर वाली साइन से, तो यानी B8 से. बट उसको आपको डॉलर का साइन रखना पड़ेगा. इसको रखने के लिए फंक्शन की करके F4 प्रेस प्रेस करोगे तो दोनों साइड डॉलर आ जाएगा. कुछ नहीं करना है, फंक्शन की जो होती है उसमें एंटर करके आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो डॉलर का साइन आ जाएगा. और फिर यहाँ पे C2 करना है एंड डिवाइड बाय 100 एंटर की करना है तो फॉर्मूला आपका P इंटू एन, तो आपको ये पूरा आ जाएगा. तो यहाँ पे जब कोई एक डेटा फिक्स होता है तो आप इस तरह से साइन यूज कर सकते हो. नाउ इसमें नेक्स्ट सेल में क्या है, यहाँ पे भी ईयर फिक्स है. आपको क्या करना है, इस तरह से थोड़ा फॉर्मूला में चेंज करना पड़ेगा. B2 ये सारा सेम रहेगा. जब भी आप ईयर लिखोगे तो उसके आगे पीछे डॉलर का साइन इंटर करना पड़ेगा. और फिर सेम फॉर्मूला है, जस्ट डॉलर को आपको फिक्स करना है. अब और फिर उसको ड्रैग करना नीचे तक जहां तक आपको कैलकुलेशन करना है. तो वो आपको सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में ये चीज करना है, तो आराम से वो कैलकुलेट करके दे देगा. नाउ
कैलकुलेट एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन फॉर द फॉलोइंग वर्कशीट। देखो ये वर्कशीट है, आपको स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे भी कॉस्ट 8 लाख है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, ईयर 1 2 3 4 5 है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम। तो टू फाइंड एसएलएम माइनस डेप्रिसिएशन, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप द फॉर्मूला एज, आपको यहाँ पे 80 लाख है तो उसको फिक्स करना है, बिकॉज ये आपका 80 लाख फिक्स रहेगा। तो उसको फिक्स करने के लिए डॉलर का साइन रखना पड़ेगा। तो अगेन ये A2 रख के उसके बाद आपको F2 सॉरी फंक्शन F4 क्लिक करना है। F4 मीन्स फंक्शन की F4, आपको F एंड 4 क्लिक नहीं करना है, फंक्शन की होता है F4, उसको क्लिक करना है। देन एंटर की, देन उसको मल्टीप्लाई करना है और 5 से। अब देखो ए और $5 मीन्स यहाँ पे आगे पीछे डॉलर नहीं लगाया, सिर्फ 5 के आगे, मीन्स आप क्या कर रहे हो, 5 क्या है आपका रो है, रो को फिक्स कर रहे हो, क्योंकि रो एक ही रो है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, उसको फिक्स करना चाहते हो, पूरे कॉलम को फिक्स करना नहीं चाहते, और वो 10% सेम रहेगा। और कॉस्ट इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सिर्फ इतना करना चाहते हो, तो कॉस्ट भी सेम रहेगा, वो डॉलर्स में सेम रहेगा और रेट यहाँ पे सेम रहेगा। नाउ क्लिक एट सेल C2 एंड ड्रैग द फिल हैंडल अप टू सेल C6। अब यहाँ पे आप C6 तक आप हैंडल आपको ड्रैग करना है, तो आपको ये सारा आंसर मिल जाएगा। तो अगर फिर आपको डब्ल्यूडीवी फाइंड आउट करना है, डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे D2 में जाना है, फॉर्मूला इस तरह से कुछ लिखना है, इज इक्वल टू करना नहीं भूलना है कभी भी। और आपको देखो यहाँ पे पहले A2 को फिक्स करना है डॉलर से, पूरा का पूरा सेल फिक्स हो जाएगा। फिर आपको माइनस सम करके D1 है, उसको फिक्स करना है, और उसको भी फिक्स करने के लिए आपको डॉलर का साइन फंक्शन F4 मल्टीप्लाई बाय, अब आपको A5 फिक्स करना है, तो उसमें भी डॉलर आगे पीछे लगाना पड़ेगा और फिर एंटर की कर देना पड़ेगा। जैसे ही आप एंटर की करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको सही तरीके से लगाना है तो आप आंसर आराम से ला सकते हो। अब देखो कैलकुलेट एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन फॉर द फॉलोइंग वर्कशीट, ये एक दूसरा वर्कशीट है। कॉस्ट 80 लाख दिया है, देन स्क्रैप वैल्यू भी दिया है एंड असेट लाइफ भी दिया है। देखो वही फॉर्मूला है, पहले आपने डॉलर से पूरा A2 को कॉलम को फिक्स किया, फिर रो को फिक्स किया, फिर डिवाइड बाय एक वापस आपने स्क्रैप वैल्यू माइनस करना है, जो असेट लाइफ ऑफ द ईयर है वो भी है, तो A6 को भी फिक्स किया, फिर एंटर की किया। मीन्स क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू है उसको आप माइनस भी कर रहे हो, तो यहाँ पे इस तरह से, और डिवाइड बाय लाइफ कर रहे हो। लाइफ क्या है इसका, तो यहाँ पे 5 इयर्स है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा साइन थोड़ा ध्यान से देखना कि ब्रैकेट में रखना है आपको पूरा फॉर्मूला, और माइनस बीच में रखना है, और कौन सा माइनस रखना है, सिर्फ रो को फिक्स करना है। क्लिक एट सेल C2 एंड ड्रैग द फिल हैंडल अप टू C6। अब आपको मैं ये एक्सेल में भी बता सकता हूँ, बट आप खुद ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लिक एट सेल D2, टाइप द फॉर्मूला एज, यहाँ पे इस तरह से कुछ फॉर्मूला आपको टाइप करना है। ये वाला फॉर्मूला आप टाइप करोगे तो आपको फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन टिल लास्ट ईयर डिवाइड बाय लाइफ, इस तरह से आ जाएगा। ये आपको फॉर्मूला आराम से ढूंढ के करना है। नाउ टीडीएस कैलकुलेशन, अगर टीडीएस का कैलकुलेशन करना है, यानी टीडीएस 50,000 है, तो उसका रेट ऑफ टीडीएस मान लो कि 10% है, तो किस तरह से, तो बहुत ईजी है, B2 इंटू 10% टच करना है और एंटर कर देना है तो आपको मिल जाएगा। और नेट सैलरी मीन्स आपको ये ये वाले कॉलम में से टीडीएस वाला कॉलम माइनस करना है। सिंपल, नेट सैलरी फाइंड आउट करने के B2 माइनस C2, ये वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू करके लगा दोगे तो आ जाएगा। बहुत ईजी वे में आप ये काम कर सकते हो। यहाँ पे टीडीएस एट 10% एंड ग्रॉस सैलरी फॉर द फॉलोइंग वर्कशीट। तो अब आपको यही सेम टीडीएस फाइंड आउट करना है, बट टीडीएस का रेट एक ही कॉलम में दिया है, मीन्स उसको फिक्स कर देना है। उसको फिक्स करने के लिए डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा आपको, एंड डिवाइड बाय 100% माइनस वापस एस B8 है उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे
टाइप द फॉर्मूला एज़, यानी क्या कर रहे हो आप, टीडीएस का कैलकुलेशन कर रहे हो। आप सीधी तरीके से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे टीडीएस का रेट अलग-अलग कॉलम में नहीं दिया है, एक ही कॉलम में दिया है, इसलिए उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। क्लिक एट द C2 एंड ड्रैग द फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको टीडीएस का आंसर मिल जाएगा। एंड अगर ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करना है तो टीडीएस हमेशा आपको नेट सैलरी में प्लस होता है, तो B2 प्लस C2 करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। सैलरी एंड टैक्स कैलकुलेशन, अब यहाँ पे एक पूरा फुल फ्लेज एग्जांपल दिया है। उसमें एचआरए, डीए, एमए, ग्रॉस, पीएफ, नेट सैलरी, ये सारा कैलकुलेट करना है। और ये सारे के इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है कि कैलकुलेट एचआरए, डीए एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आपको इसका यूज़ करके प्रॉपर फॉर्मूला लगा के आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है। जैसे एचआरए कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैक्सिमम कितना एचआरए देना है, मिनिमम कितना देना है, वो सारी बातें इनको यहाँ पे लिखी है। अब ये सारे फॉर्मूला यूज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और ये जैसे पहला है कि हाउ टू फाइंड आउट एचआरए, हाउ टू फाइंड आउट ग्रॉस सैलरी, हाउ टू फाइंड आउट डीए, टू फाइंड आउट पीएफ, टू फाइंड आउट एमए, टू फाइंड नेट। तो ये आप उसका स्क्रीनशॉट लेके ये फॉर्मूला लगा के राउंड ऑफ कर सकते हो, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा रहेगा। नाउ कैलकुलेट इनकम टैक्स एंड सरचार्ज एंड टोटल टैक्स फॉर द फॉलोइंग वर्कशीट। आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, सरचार्ज कैलकुलेट करना है। ये टैक्स स्लैब रेट है, तो आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। जीएसटी कैलकुलेशन करना है, तो इसका ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला लगा के आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। अगर इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट डाउन इन अ कमेंट बॉक्स। बहुत ईज़ी, आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो ये सारी फॉर्मूला का, और आप उसको एंटर करने की कोशिश करो। जैसे इनकम टैक्स फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला लगाओगे। और अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही फ़ॉर्मूला है। अगर किसी को इससे भी अच्छा फ़ॉर्मूला आता है और इससे शॉर्टकट तरीके से हो सकता है, तो वो आराम से कर सकता है।